Okay, so welcome to all of you again. In this first lecture of CA Foundation Business Law, as already I have told you yesterday that this paper is combined with the two part. Okay, number one part is a business law, and number two part is a business correspondence and reporting (BCR). Okay, the part which I'm going to teach you from this particular paper is a business law, and that part is for a 60 mark, and the remaining part BCR, business correspondence and reporting, is for a 40 mark. Now, the very first thing which we should go inside, that is with the word business law. Now, before going to deal with this particular business law, what is required is that we should go into the word law. So what we are going to do is that we are going to deal in this particular course of a CA Foundation Business Law, start our lecture Introduction to Law, because see, the topic or the subject you are going to deal is a business law. And if you did not know what is meant by the word law, if you did not know what is meant by the word act, if you did not know what is meant by the word statute, if you did not know the word bill, then your knowledge will be somewhat lacking. And therefore, what we are going to deal is that in our first lecture, and that first lecture, we are not going to open module, okay? We are going to just deal with the general concept of a law, general concept of a business law, general concept of the act, statute, bill, how this particular law comes, why we need this particular law, why the law is needed in the business also, because from the standpoint of view of a society, हमें क्या लगता है कि लॉ की जरूरत कहाँ पे होगी? अगर कोई क्राइम होगा तो जनरली लोगों का जो लॉजिक होता है वो लॉजिक कैसा होता है कि लॉ की जरूरत कहाँ पे होगी? अगर क्राइम होगा तो लॉ की जरूरत होगी, बट नॉट लाइक दैट. लॉ हमें हमारे जनरल लाइफ में रिक्वायर्ड होता है, लॉ हमें बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है, लॉ हमें सोसाइटी में रिक्वायर्ड होता है, लॉ हमें स्कूल कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है. क्योंकि अगर सोसाइटी का बिहेवियर रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो किसकी जरूरत होगी? बोलो, वहां पे लॉ की जरूरत होगी. ओके, सो देयरफॉर बीइंग अ सीए स्टूडेंट, before dealing with our actual acts from the syllabus, what we are going to do is that one. Today we are going to deal with the concept of the law, concept of the business law, concept of the act, concept of the statutes, and concept of the bill, and how this law comes up to us. ये law exactly हमारे तक कैसे पहुंचता है, इस पूरी प्रोसीजर को आज हम क्या करेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, okay, now see, as I already told you that we are going to deal with the topic that is business law. ये जो part है, मैं आपको क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ. मैं आपको already बता चुकी हूँ इस चीज को. हाँ, and now we are here. Okay, the very first question is that before going into the word business law, we need to understand what is meant by the word law. Law का exactly मतलब क्या है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है. ओके, what is meant by the word law, हमें स्टडी करना है. अभी देखो, सिंपली व्हाट आई हैव इवन टोल्ड यू आल्सो, दैट इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल, अगर हम किसी स्कूल की बात करें या किसी कॉलेज की बात करें, हाँ, या किसी ऑफिस की बात करें, या सिंपली अगर हम हमारे अपने ओन 5, 8, 10, 12 मेंबर्स के फैमिली की बात करें, हाँ, तो अगर हम किसी ऑफिस, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी मंदिर, किसी फैमिली की भी बात करते हैं, तो उस फैमिली में अगर हमें अच्छे से रहना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की. ओके, जैसे माय फैमिली हैव सम रूल्स. ओके, दैट वी ईट टुगेदर एट 1 o'clock. हाँ, everybody in the home is expected to come before 9 o'clock. Okay, then we early morning wake up at 7 o'clock. Like that, whatever rules may be there, but उस रूल्स की वजह से वो फैमिली बनी रहती है. अगर 2 मिनट के लिए सोचो कि उस फैमिली में वो रूल्स ही नहीं है, तो वो फैमिली बनी रहेगी क्या? वहां पे नहीं बनी रहेगी. ओके, डिस्टर्ब हो जाएगी, मनमानी करेंगे हर कोई, जिसको जो करना है वो करेगा वहां पे. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट फैमिली टुगेदर, rules and regulations are required, right? Number 2, if you talk about some school or college, okay, again, कभी भी बच्चा आता है, कभी भी जाता है. Okay, they don't have any rules and regulations, no any kind of the discipline is there in the school. Is it possible that the school will run?
Of course not. Okay, so what is required for running the school also? Rules and regulations. Okay, वैसे ही अगर हमें पूरी कंट्री चलानी है, स्पेशली लाइक अ कंट्री लाइक अ इंडिया जहाँ पे मोर देन 130 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे अगर आप सोचो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो वो कंट्री चल सकती है क्या? ऑफ कोर्स नो. हाँ, सो देयरफॉर लॉ क्या है बोलो? लॉ आर सिंपली स्पीकिंग रूल्स ऑफ द एक्शन. लॉ क्या है बोलो? सिंपली स्पीकिंग लॉज आर कंसिडर्ड टू बी द रूल्स ऑफ एक्शन. हाँ, और कंडक्ट, हमें हमारा कंडक्ट, हमें हमारा बिहेवियर कैसे करना है, हाँ, इसके प्रिस्क्राइब्ड रूल्स मतलब क्या है बोलो? वहां पे लॉ है. लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ एक्शंस और अ कंडक्ट. लेकिन मेरे घर के नियम किसने बोले बोलो? मेरे फैमिली के बड़े लोगों ने. माय फादर मदर दे हैव मेड दैट पर्टिकुलर रूल, राइट? स्कूल एंड कॉलेज के रूल्स किसने बनाए बोलो? स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के कंसर्न अथॉरिटीज ने वो रूल्स बनाए, राइट? उस ऑफिस के रूल्स जो बने हैं वो किसने बनाए बोलो? उस ऑफिस के बॉस ने बनाए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ व्हिच गवर्न द कंट्री, वो रूल्स किसने बनाए बोलो? वो रूल्स मैंने अपनी नहीं बनाए. लॉ वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉ वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए? किसी देश के हायर अथॉरिटी ने, कंट्रोलिंग अथॉरिटी. एंड जिसको देश में लीगल फोर्स होगा, अगर आप लॉ फॉलो नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. आपको कंपल्सरी बाइंडिंगली उसको क्या करना पड़ता है बोलो? फॉलो करना पड़ता है. इसका बेस्ट ऑफ एग्जांपल क्या लेंगे बोलो? Today we are within a particular restriction of a law, right? There is a lockdown. The lockdown has been decided by the government, and accordingly we are following it. There is a legal binding force. नहीं फॉलो करोगे तो आपको पनिशमेंट सफर करनी पड़ेगी वहां पे, राइट? सो लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन एंड कंडक्ट. कंडक्ट योर बिहेवियर, आपको कैसे बिहेव करना है, इसके बॉडी ऑफ रूल्स मतलब लॉ है. प्रिस्क्राइब बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसको प्रिस्क्राइब किसने किया बोलो? एक अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया है. एंड जिसको लीगल फोर्स है, आपको उसको कंपल्सरी फॉलो करना है. हाँ, that which must be obeyed and followed by the citizen. मैंने आपको अभी बताया, जिसको आपको कंपल्सरी फॉलो करना है. हर सिटीजन को उसके अपने देश के रूल्स को फॉलो करना है. हाँ, that which must be obeyed and followed by the citizen. हाँ, subject to the sanction मतलब punishment. अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको क्या सफर करनी पड़ेगी बोलो? सैंक्शंस. हाँ, सैंक्शंस वर्ड इज अनदर वर्ड व्हिच एक्चुअली हैव टू इंटरप्रिटेशन. सैंक्शन हम परमिशन के एंगल से भी लेते हैं, सैंक्शन ली ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे सैंक्शन वर्ड किस एंगल से लेना है बोलो? पनिशमेंट. ओके, सो लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन एंड कंडक्ट, जिसको मैंने या अपनी नहीं बनाए इन रूल्स को, which are prescribed by controlling authority, जिसको लीगल फोर्स है, which have a binding force and which be should be obeyed and followed by the citizen. जिसको सिटीजन को कंपल्सरी क्या करना है बोलो? फॉलो करना है. सब्जेक्ट टू सैंक्शन इज लॉ. सब्जेक्ट टू सैंक्शन, आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? वहां पे आपको पनिशमेंट सफर करनी पड़ेगी. ओके, सो वेरी सिंपली स्पीकिंग जो डेफिनेशन हमने वंस कल भी ली थी, जो एक्चुअली जनरली एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में लॉ का मीनिंग बताती है. तो लॉ मतलब क्या था याद है आपको? हमने कल भी देखा था, आज वापस देख रहे हैं. लॉ मीन्स सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ मतलब क्या बोलो? सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है. हाँ, मेड बाय हायर अथॉरिटी, वो मैंने या आपने नहीं बनाए. लॉ किसने बनाया बोलो? हायर अथॉरिटी ने बनाया. लॉ क्यों बना गया बोलो? अगर आपको सोसाइटी में पीस, डिसिप्लिन, सिक्योरिटी, ऑर्डर, हाँ, मेंटेन करना है तो लॉ चाहिए. सोसाइटी में शांतता चाहिए, सोसाइटी में डिसिप्लिन चाहिए, सोसाइटी में आपको सुरक्षित रहना है, हाँ, सोसाइटी में आपको ऑर्डर मेंटेन करनी है, तो आपको लॉ को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. हाँ, एंड नहीं फॉलो करते हो, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ देन इट विल रिजल्ट इनटू द पेनल्टी. लॉ को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा बोलो? उसका रिजल्ट होगा वहां पे पेनल्टी विल बी द रिजल्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द लॉ वहां पे. सो गॉट द पॉइंट? ध्यान में आ रहा है आपको? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लॉ? लॉ मींस सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, which are prescribed by some higher authority like a parliament, or state legislature, etc. Now you will have the doubt in the mind, parliament, state legislature, ये words आपको समझाऊंगी. ये words भी आगे आगे में आते जाएंगे. How the law created, what is mean by the word law, what is mean by the act, statute,
बिल, ये सारे वर्ड्स एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आपको क्लियरली पता होंगे। हाँ, बट अभी के लिए इतना पहले समझ के लो कि द टॉपिक or the part of the paper we are going to study as a business law. Before going into the word business law, we first of all dealing with the word law, and we have gone through the two definitions of the word law. One definition was given by Black. Black's definition we have discussed was that law means some rules of action and conduct, which are set by some controlling authority, which have the binding legal force, and is the duty of every citizen that they should follow that particular law. If they did not follow the law, that will be followed by some punishment, sanction. And the another definition we discussed that law means set rules and regulations. कुछ नियम है which are prescribed by some higher authority like a parliament, etc. And it is a binding on us that we should follow that rules. If we did not follow the rules, we will suffer some punishment, penalty. And why we require the law? Law is required for the purpose of maintaining the stability, peace, order, security in the society. What is required is that one law की जरूरत है, right? Exactly. Now the fresh point we are here discussing is the why do we need the law? Law की जरूरत exactly क्यों है? देखो अभी simply speaking, अगर ये लॉ नहीं होता तो सोसाइटी में सब लोग कैसे भी कुछ भी बिहेवियर करते, कुछ भी एंटी सोशल बिहेवियर सोसाइटी में हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर सोसाइटी में हो जाते। ओके, सो व्हाई वी नीड द लॉ? लॉ की जरूरत क्यों है हमें? देखो सोसाइटी में जो लोग असामाजिक चीजें करने की कोशिश करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए। जैसे देखो सिंपली हम अगर हमारे बिजनेस लॉ में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया, कल मार्केट में रेट बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अनएक्सेप्टेबल है ना? हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम बिजनेस में वर्ड्स को बहुत वैल्यू देते हैं, राइट? जबान को बहुत वैल्यू देते हैं हम लोग बिजनेस में। तो ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट करो और उसके बाद में लॉ रेट बढ़ गया तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। तो ये बिहेवियर कैसे बोलो? अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए लॉ की जरूरत है। क्योंकि लॉ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कोर्ट में जाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे डैमेजेस मांगे जा सकते हैं, सामने वाले पार्टी को डैमेजेस देने पड़ेंगे, राइट? या फिर एक सिंपली स्पीकिंग आप बात करो कि कोई भी नो एंट्री में गाड़ी घुमा रहा है, कैसे भी जोर जोर से गांव भर गाड़ी घुमा रहा है, किसी का भी एक्सीडेंट कर रहा है, एंटी सोशल बिहेवियर है। बट ये बिहेवियर कोई करेगा क्या? बोलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ है वहां पे। तो लॉ क्यों रिक्वायर्ड है? बोलो टू प्रिवेंट एंटी सोशल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। नंबर 2, लॉ क्यों रिक्वायर्ड है? बोलो टू रेगुलेट कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। इकोनॉमिक कमर्शियल ट्रांजैक्शन बहुत मैटर करता है। अगर लॉ रहता ही नहीं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में लोगों को कुछ डर ही नहीं रहता, कैसे भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और कैसे भी तोड़ देते वो नहीं करना है। सारे कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर वो सेल के ट्रांजैक्शन हो, पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन हो, कंपनी वाले ट्रांजैक्शन हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो लॉ की जरूरत है। आपको पता है एक टाइम था जब कंपनीज में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ करते थे, बट आज कंपनी फ्रॉड पे बहुत कंट्रोल आया हुआ है। एंड वो कंट्रोल क्यों आया है? बोलो स्ट्रिक्ट कंपनी लॉज। डे बाय डे कंपनी लॉ में चेंजेस होते जा रहे हैं, अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऊपर से आ रहे हैं जो कंपनी के जो फ्रॉड्स है उस पर क्या ला रहे हैं? कंट्रोल ला रहे हैं। ओके, सो वी नीड द लॉ टू रेगुलेट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। देन लॉ है इसलिए हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है ना। सोचे अगर लॉ नहीं होता तो हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड होती क्या वहां पे? नहीं। एंड कौन कौन से प्रॉपर्टी का ओनर है ये तो रेगुलेटेड होता क्या? सोचो नहीं। तो टू आइडेंटिफाई हु शुड राइटफुली ओन द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर कौन है, इसके आइडेंटिटी उसको कौन देता है? बोलो लॉ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखो कि हमारा जो फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप रेगुलेटेड है वो भी किसकी वजह से? सोचो लॉ की वजह से। टू रेगुलेट फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। एक सेकेंड के लिए सोचो कि अगर one person who's having a live husband or a wife cannot marry the second husband or a wife, ये रूल नहीं होता तो कोई भी कितने भी लोगों के साथ शादी करता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, मैरिज इंस्टीट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं होता,
प्रॉपर्टी में वारस, लीगल हायर्स, इन वहाँ पे सारी क्या चीजों छुपा का है? कोई वैल्यू नहीं होता, मिराज राइट? सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लॉ टेक्निकल पे है। क्यों चाहिए लॉ बोलो वहां पे, टू रेगुलेट द फैमिली रिलेशनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो लॉ की जरूरत है। हाँ, एंड अगेन अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब क्या होगा बोलो, वहां पे कभी ना कभी तो डिस्प्यूट होगा। कभी मैं आपको कुछ माल दूंगी, हाँ, आप पैसे देने से शायद मना कर दो, कोई टाटा और बिरला का झगड़ा हो सकता है, कभी अंबानी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है। हाँ, मतलब बड़े से लेकर छोटे से छोटे इंसान तक कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो वो डिस्प्यूट अगर हमें सॉल्व करना है तो किसकी मदद की जरूरत होगी बोलो, हमें लॉ की जरूरत होगी, राइट? सो अगेन व्हाई वी नीड द लॉ, we need the law for providing the citizen means to resolve the dispute with other citizen. सिटीजन के बीच में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है बोलो, हमें लॉ की जरूरत है। ओके, सो लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर preventing the anti-social and unacceptable behavior. Law required for regulating the commercial and business transactions. Okay, law required to identify who is the rightful owner of the property. Law required for maintaining your family and personal relationship also. And law is required to provide a mechanism, a means for the citizen to resolve their dispute with the other citizens. Okay, so up to now what we discuss is that we have discussed what is mean by the word law, rules and regulations set by some higher authority for maintaining the peace, order, stability, security in the society. And just now we discussed why we need the law. Law की हमें क्यों जरूरत है? To control the anti-social and unacceptable behavior, to regulate commercial business transactions. We need the law to regulate our property ownership. We need law because we want to maintain our healthy personal and family relationship. We need the law because we want some mechanisms to resolve our dispute. कोई झगड़ा हो ही गया, उस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत है। वो मैकेनिज्म भी हमें कौन प्रोवाइड करता है बोलो, वो मैकेनिज्म हमें लॉ प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट?